अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी। खैर की सुबह हो गई है तो सारे बेहतरियाँ हो रही हैं जी सफाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अब मैं नाश्ते नुश्ते करके हम लोग फारिग हो गए हैं। शराज साहब ऑफिस जा रहे हैं और मैं सफाई कर रही हूँ। तो मैं हूँ चलिया काम ते पिछों हुण मोबाइल इहदे हवाले विआह ते भी जाना वे, उत्थे भी थोड़ा जिहा शूट करांगे। ठीक है जी। पापा की दाल है। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ये आपने खिलाई ये दाल, कौन सी दाल ये जो रात को आप खा रहे थे वो पैकेट वाली जी? वो वाली दाल कैसी गिर गई? आपसे ही ਐ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਕਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸੀ ਪੈਕਟ ਜ਼ਰਾ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾਲ ਬਚੀ ਸੀ ਪੈਕਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਡਿੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਪੈਕਟ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿ ਰਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੀਂ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਲੀਵ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ। ਯਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਐਂਜੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ वो बाबा ने बारात पर पहनना है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਇਆ हाँ, ਸੀ। इतने सोया सी। लो जी, ये देखें गाइस, ये देखें मेरा ये देखें गाइस मेरी समझदारी। सियाणी ते तू बहुत है। करो तो के सिर्फ इस्त्री करवाया सी। सियाणी ते तू बहुत। जरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कलर ਦੱਸ- ला के उन्हें देती सी ना मैं, तो मैं क्या जरा झगड़ा लाओ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, हाँ जी, ते सारी गल है लम्बे ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। थोड़ी सी तो ही है ना मौड़ी। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਵਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ हाँ ਨਾ, मैं करांगी। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ। हाँ मैं करांगी, इनमें माया ना के। चलो बाकी वीडियो बना लेंगे आप ही, हम कारीगर होगी। गाइस, ये आ गया जी रुबाब का गिफ्ट बच्चों की तरफ से, सब ने मिल के दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एडवांस बर्थडे गिफ्ट है। 17 जून को रुबाब की बर्थडे है, तो जो भी इसके फ़ैन हैं इसको गिफ्ट देना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, क्योंकि मेरे को गिफ्ट मंगन डी है ते मेरी ना हुन बस हो गई। बहुत गिफ्ट देते हो गई है पीनो, हुन माफी नहीं है, गिफ्ट देना है। गिफ्ट मैं तेरे लिए सब तो बड़ा गिफ्ट है। पिछले साल भी कोई गल करके मन ठंडा करता सी, हुन नहीं, गिफ्ट चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा एदा मतलब है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਵਾਂਗਾ। हाँ, मैंने तो है कोई पता है ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਾਂ ਔਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। कि केक लिया दी ਯਾਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਵਾਂਗਾ। सब जाती है। ਯਾਰ ਸੂਟ ਪਿਆਰਾ ਵੈਸੇ। ਦੇਖੋ ਗਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਗਿਫਟ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫੈਨ ਨੇ ਮਜਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਿਫਟ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਆ ਭੇਜੇ ਬਤਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਿਫਟ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। अल्लाह ਇਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਦਿਓ। बिल्कुल सही है। और ना, अल्लाह की नहीं। तरफों आंदा है, मैं मांगनी थोड़ी है। ए देखो, ਨਹੀਂ चेक करो। ਤੂੰ ਮੰਗੀ Shut up। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, 17 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। लो जी, कमाल हो गया जी, मुबारक हो आपको। आपके बच्चे माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपको गिफ्ट देने शुरू हो गए। निक्के होंदे ते माँ प्यो बर्थडे गिफ्ट दिंदा भावें जिन्ने जोगा भी होवे, ते फिर औलाद नूं भी चाहिदा ना माँ प्यो दा यार करे। ते कदी कदार माँ प्यो नूं फोन करके हाल चाल पुछ लिया करो यार, इंतज़ार च रहिंदे ने। माँ बाप नूं फोन कर लिया करो। जिहड़े दूसरे मतलब शहरां 'च नौकरियां करदे ने
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਏ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਗਿਫਟ ਮੰਗਣ ਡਈ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗਿਫਟ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਕੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਰਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਮੁਤਮਈਨਾ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। सिराज साहब ऑफिस जा रहे हैं, अच्छे हैप्पी मूड ना जाओ। देन नी शूज चलाओ, सिराज में शूज चाहिए। ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। आपे ले ਪਾਲਿਸ਼ लिया वो खाओ। गरीब गरीब के शूज दिखाओ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ। गरीब जराबे कहाँ हैं? चलें जी, सिराज साहब की जराबें निकालें। कहाँ गई जराबें? ये रही। हेलो जी, ये मैंने बनाए हुए हैं सेक्शंस डिफरेंट। ये देखें जी, ये इसमें मैंने सिराज साहब की चीज़ें संभाली हुई हैं, जराबें और बनियानें और दूसरी सारी चीज़ें। नीचे भी अली असगर और अकबर की चीज़ें मैंने इस तरह, नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन इस तरह ये मैंने चीज़ों को सेव किया हुआ है। सेफ्टी इन्हों एनक चले। चलो जी, सिराज साहब ऑफिस जा रहे हैं। चाबी फाड़ ले जी, चाबी फाड़ ले जी। दूसरी चाबी दे, मैंने पता जल्दी सी, जा ऐसे नहीं मैं यार। पूछे है। ये देखिए, ये चाबी पकड़ ली फायर गेट की। हाँ जी, हेलो, फड़ो चाबी। ओए होए 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 होए, अल्लाह माफ करे, इतनी धुप। खुदा हाफिज बोलो, अल्लाह हाफिज। चलो जी, वापस चलिए। ये देखें जी, मैं मूंगी मसूर की दाल बना रही हूँ। इसमें जाएगा हस्बे जायका नमक, एक टीस्पून मिर्च, क्योंकि हम लोग मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, सिराज साहब को मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं। अ पिंच ऑफ हल्दी, दैट्स इट। मैं बस यही डालती हूँ और मैं कोई मसाले नहीं डालती। और इसमें जाएगा ये छोटा सा प्याज और ये अदरक लहसुन का एक छोटा सा चमचा पेस्ट का, जस्ट टीस्पून, और एक छोटा सा टमाटर और आधा प्याज मीडियम साइज़ का। ये जो मैंने ये लिया है ना, ये देखें ये वाला, तो ये मैंने यहाँ पे काट के रखे हुए हैं। तो ये देखें, ये इतना ही तकरीबन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें चॉप करती हूँ, क्योंकि ये मैं वैसे अगर डाल दूँ तो ये प्याज जो है ना नज़र आता है, तो मेरे बच्चे जो हैं ना वो फिर नहीं खाते। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, ये यकजान हो जाएं ये दोनों चीज़ें, तो फिर मैं इसमें डालती हूँ तो मेरे बच्चों को ना मुंह में नहीं आता। वैसे अमूमन प्याज जैसे काट के डाल दो ना तो ज़रा ज़रा नज़र आता रहता है, तो फिर बच्चे जो वो नहीं खाते। ये देखें जी, ये अच्छे से क्रश हो गया। अब इसको मैं दाल के अंदर डालने लगी हूँ। ये ना मैं जो भी दाल बनाती हूँ या सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो ये मैंने अपनी अम्मा को देखा हुआ है, वो इस तरह बनाती थी, तो हमें वही टेस्ट पसंद है। बस यहाँ पे आके थोड़ा सा बैंगनों का मुझे वो गिट हो गया है, क्योंकि मैं जो छिलके के बगैर हमारे घर में अब भी पकते हैं,
तो यहाँ पे छिलकों वाली, बाकी सब कुछ सेम सेम है। हाँ कुछ पालक भी, पालक मैं ग्राइंड करके बनाती हूँ, फूफो ग्राइंड नहीं करती थी। हर घर का एक अपना स्टाइल होता है, बस इसी तरह है। अब इसमें थोड़ा सा ना पानी डालूँगी। और मैंने ना वो प्याज आपको दिखाती हूँ, टोकरी में जो रखे हुए थे ना, ये देखें, ये कुछ गल गए थे, तो फिर मैंने उनको काट कर और उसमें फिर डब्बे में सेव कर दिया। अब वही मैं चला रही हूँ। आज 5वां दिन हो गया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मुझे बार बार प्याज नहीं काटने पड़े। अदरक लहसुन का पेस्ट पहले मैंने बना कर रखा है। शहजाद साहब मेरा इम्तिहान लेने के लिए और लहसुन ईद से पहले ले आए थे। अब टाइम निकालूंगी। आज सारम की मेहंदी है, तो आज वहाँ जाना है। टाइम ही नहीं मिल रहा इनको छीनने का। बस अब जैसे शादी ख़त्म होगी तो फिर इस तरफ लग जाएंगे। चलें, अब ये दाल की फ़ाइनल लुक होती है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जी देसी घी है, ये आटा है। और अब मैं ये जो देसी घी है ये मैं बाटे में डाल देती हूँ। मैं यही डालकर आटा गूंथती हूँ। और मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि इस टाइम सुबह हुई है और मैंने कोई दाल से रात को कुछ भी नहीं बनाया था। बस वो चपली कबाब थे, वही हमने रोटी के साथ खा लिए थे। तो अब उठी हूँ तो मैं ये दाल पका रही हूँ और साथ ये आटा गूंथ रही हूँ। तो अभी बच्चे सोए हुए हैं, एनी सिर्फ जाग गई है अब, तो अब मुझे ज़रा स्पीटें पकड़नी पड़ेंगी। तो बच्चों को फिर मैं नाश्ता कराऊँगी। चलें फिर मैं अब ये कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, आटा इज़ डन, हो गया आटा अल्हम्दुलिल्लाह। और दाल भी बन रही है। अभी सुबह के जो हैं वो 9 बजे हुए हैं, तो बस आधे घंटे तक दाल डन हो जाएगी और आटा भी ठहर जाएगा। फिर मैं पराठे शराठे बना कर तो बच्चों को उठाऊँगी। चलिए, अब मैं आपको जब दाल को तड़का लगाने लगूँगी ना तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखें जी, 1 गिलास चावल मैंने निकाल ली है, ताकि शहजाद साहब जो हैं वो रोटी तो खा नहीं सकते, तो फिर उनके लिए चावल निकालने के वो साथ ऑफिस ले जाएंगे। ये देखें, ये वाला गिलास है मेरा, तो ये 1 गिलास चावल है। क्योंकि आज रात को तो हमने जाना है मेहंदी पर, तो बच्चों ने फिर भी रात को वापस आकर कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगना है। ये इन सबका ही ऐसा होता है कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि कहीं घूम फिर कर आते हैं तो घर आकर फिर वही कुछ खाने के लिए है, कुछ खाने के लिए है। ये भी यही करते हैं। ये देखें जी, कूलर मैंने धो लिया, अब मैंने इसको भरना है। अब यहाँ से उठाएंगे बॉटल। ये रख लिया जी मैंने बॉटल। अब मैं इसको भर के इसके अंदर डालती हूँ। ये देखें जी, जग के साथ मैं भरती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ। फाइनली इसमें डाल दिया, अब इसमें बर्फ़ डालने लगी हूँ। ये देखें जी, बर्फ़ मैंने फाइनली डाल दी। इस बॉक्स के अंदर मैं पानी डालकर तो फ्रीज़र में रखती हूँ और उसका कैप ये है, तो फिर जो है ना पानी फ्रीज़र के अंदर नहीं गिरता और ये बॉक्स ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। और जो दूसरे बॉल होते हैं ना तो उनसे ना पानी गिरता रहता है। इसमें मैं पानी डालकर जब मतलब इतना पानी डालती हूँ कि बाहर ना निकले और ऊपर ढक्कन दे देती हूँ। इससे ये होता है कि दूसरी जो चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी होती हैं ना, उनकी खुशबू पानी में नहीं डालती। देखें जी, बच्चों का हाल, यूँ आकर शूज़ फेंक देते हैं, फिर अब इन्हें उठा कर साफ़ करके मैं अलमारियों में रखूँगी। बस ये मेरी डेली रूटीन है। शहजाद साहब का लैपटॉप शहजाद साहब के बैग में, अली अकबर का लैपटॉप अली अकबर के बैग में, और फिर बिस्तरे उठाऊंगी। इस चीज़ में मुझे तकरीबन पूरा आधा घंटा लगता है। ये देखें जी, ये वाले 2 चमचे मैंने ऑयल के डाले हैं और ये 2 जवे जो हैं लहसुन के, इसका मैं अब इसको तड़का लगाती हूँ। ये देखें जी, तड़का हो रहा है, पानी हो रहा है, दाल डन है। अब बस तड़का लगा देना, झटपट काम। देखिए जी, दाल को तड़का लग चुका है, चावल भी पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और चाय भी बन चुकी है। और अब शहजाद साहब को मैं उठाने जा रही हूँ कि उठ जाएं, उनके ऑफिस का टाइम हो रहा है। बच्चों के पराठे भी बन चुके हैं, अब सबको उठाती हूँ।
ये देखें जी, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है और मीडियम साइज़ का ही टमाटर है और एक गिलास जो स्टील का है उसकी ये दाल है। आधी दाल मूंगी की है, आधी दाल मसूर की है। और अब इसको मैं इसके अंदर चॉप करके और दाल के अंदर डालूंगी। उससे पहले मैं आपको नमक मिर्च दिखा दूं। ये हाफ टी स्पून नमक, वन टीस्पून लाल मिर्च, अ पिंच ऑफ हल्दी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हल्दी मतलब नहीं यूज़ करती, मैं कम दाल में यूज़ करती हूँ। तो ये रेसिपी भी मेरी अम्मी की है। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। और ये अब ये टमाटर और ये प्याज इसमें चॉप करके तो दाल में मैं डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये रात को मैंने ना आकर इनसे मैरिनेट कर दिया था कीमे को। ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बना रही हूँ। ये देखें, और ये देखें जी, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये मैंने बनाई है। इसकी रेसिपी मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ जी, ये किलो कीमा है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च के डाले हैं, नमक हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया और वो भी ये समझे 2 टेबलस्पून है, अनारदाना भी 2 टेबलस्पून है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। बेसन मैंने नहीं डाला, इसमें हरी मिर्चें डाली हैं 5-6 और थोड़ा सा हरा धनिया और 1 बड़ा टमाटर। ये सारी चीज़ें मैंने क्रश करके और एक मीडियम साइज़ का प्याज, इन सब चीज़ों को क्रश करके पानी निकाल कर इसके अंदर डाल दिया है। तो फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया और अब बच्चों को रोटियों के साथ ये दे रही हूँ मैं। तो ये इसकी सिंपल सी रेसिपी है। कुछ लोग बेसन भी ऐड करते हैं, कुछ लोग अंडा भी ऐड करते हैं, कुछ लोग ब्रेड भी ऐड करते हैं। हर किसी का अपना टेस्ट है, लेकिन मैं इनमें से कोई चीज़ नहीं ऐड करती। मैंने सिंपल बस ये मसाले डालकर तो इसको बना लिया है। सूखा धनिया थोड़ा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और अनारदाना भी, क्योंकि उसका एक टेस्ट, एक फ्लेवर आता है। प्याज एक मीडियम है और टमाटर भी मीडियम है। तो बस ये चीज़ें हैं इसमें। ये देखें जी, ये कीमा मैंने रात को ही मैरिनेट कर लिया था। इसमें 5 हरी मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है और जैसे कहते हैं कि वो जो लाल मिर्च एक तो पिसी हुई होती है ना, एक साबित मिर्च को थोड़ा क्रश कर देते हैं, वो दड़ा मिर्च कहलाती है। 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है, 5 हरी मिर्चें हैं, नमक हस्बे ज़ायका है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून ही अनारदाना है, थोड़ा सा वो मैंने हरा धनिया डाला है। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और मीडियम साइज़ का ही टमाटर डाला है। इन सब चीज़ों को मैंने क्रश करके अच्छे से पानी निकाल कर इसके अंदर डाल के मिक्स करके तकरीबन 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। तो ये मतलब कीमा तो मैंने रात को ही कर लिया था, लेकिन ये जो हरा मसाला है ना, ये सुबह मैंने इसमें ऐड किया है और उसमें पानी निकाल कर फिर मज़ीद इसे 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। और अब बच्चों को मैं इसकी टिक्कियाँ बना कर दे रही हूँ। तो सेम मतलब यार चपटी कबाब का भी यही पैटर्न है। इसमें बेसन ऐड कर दें तो चपली कबाब है। कुछ लोग इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, ब्रेड भी करते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। सिंपल सी रेसिपी है और ये मेरी मम्मा की ही रेसिपी है, वो हमें इसी तरह ही बना कर देती थी। तो मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, वो इसी फॉर्म में ही इसे खाते हैं। ये देखें जी, इस तरह। और अब बकाया मैं अब ये जो है ये बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। तो मेरा जो छोटा है ना अली असगर, उसके तो ये हार्ट फेवरेट है। अब वो आते जाते माशाल्लाह अब इसको पकड़ेगा यूँ और खाता फिरता, चलता फिरता, खाता फिरता रहेगा। तो इसी तरह है। फिर मैं आपको मज़ीद ये जब सारे रेडी हो जाएंगे तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़े से लफ्ज़ बीच में मेरे ना उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि गर्मी इतनी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं पसीने में कैसे भीगी हुई हूँ। मैंने आपको बताना था ये किलो कीमा था टोटल। और अब मैं ये सारी जो है ना, ये देखिए आते जाते इसको खा रहे हैं। तो अब ये मैं बना लूँ, 7 रोटियां सूखी इनको बना कर दूँगी और थोड़े से वो जो प्याज है ना, वो ज़रा माइनर से ऑयल में सोटे करके वो भी इनको साथ देती हूँ लच्छेदार। तो उसका बड़ा ही मज़ा क्या आता है। और साथ इनका रायता बना कर दूँगी पुदीने की चटनी डालकर।
तो शहजाद साहब को जो है वो मैं ज़ीरा सोटे करके तो उसे क्रश करके रख लेती हूँ, और फिर वो दही में वही वो ज़ीरे वाला पाउडर जो है ना वही डालकर और वो खाते हैं, उनको ज़्यादा उसमें टेस्ट आता है। तो अब ये मैं करूँगी। एनी बाज आ जा, बस कर दो तुम दोनों। मैं वेखो हुण मेरा हाल वेखो, मेरा हशर वेखो की होया आवे। अच्छा हुण नशर जे मेरा हुण बीपी हाई हो गया ना तो बस फिर। हाँ तुम तो जा रहे हो खा पी के डफा डफी करके जा रहे हो। वो तो सही बात है, बुरी बात है, लेकिन माँ का भी तो एहसास करो कि माँ बेचारी देखो किस तरह क्या असर हो रहा है माँ का। फ्रेम करा ले बहुत तुम ना, वैसे फ्रेम करा ले कीमे को। ये जब तुम बनाओगी ना अपने घर में फिर मुझे कहना मम्मा बहुत गर्मी है मम्मा, फिर ये कहना, फिर पता चलेगा मम्मा। पीछे मोटर बंद कर दो, भर गया पानी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी डन हुआ। बस अब ये बना कर तो चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ जब सब बन जाएंगी। चुक लो चुक लो चुक लो। नहीं असगर को देने जा रही, उसको भूख लगी है। चलो क्या बना रही हो? बिस्किट बना रही। वाह जी वाह, जब बनाओगी फिर हमें भी दिखाना इसकी फाइनल लुक। कहाँ बेक करोगी? चूल्हे पे। अच्छा वही देश के में रख के। चलो गुड हो गए, फिर दिखाना कि कैसे रखोगी, ठीक है? अच्छा इसमें क्या क्या डाला है तुमने? अभी तक मैंने इसमें मैदा डाला है। 1 कप है? नहीं ग्राम्स में है ये। अच्छा मैदा है, चीनी है, और क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर है, और अभी तक कुछ नहीं डाला। अभी इसमें अंडा डालूंगी। चलो ठीक है, जब बनाओगी हमें दिखाना। ये देखें जी फाइनली एनी ने बना लिए बिस्किट।